سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين على لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد دین حنیفہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اپنے سر کو دین حنیفہ کے آگے جھکاؤ، اپنے سر کو دین حنیفہ کے آگے جھکائے رہو اور اس طرح سے جھکاؤ کہ جس طرح سے جھکانے کا حق ہے، کیونکہ وہ ذات کہ جس نے ہمارے اوپر شریعت کو اپلائی کیا، جس نے اسلام کو اپلائی کیا، جس نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ ہم نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جو نہیں جھکتے وہ اکڑنے والوں میں آتے ہیں، اور جو اکڑ جاتے ہیں قدرت کہہ رہی ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یوں بھی ہمیں اکڑنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کس بات پہ اکڑے، ہم تو اس کے محتاج ہیں۔ وہ اگر ہمیں کچھ عطا کرے تو ہمیں ملے گا، وہ اگر کچھ دے گا تو ملے گا، اور اگر وہ اپنا دیا ہوا ہم سے واپس لے لے گا تو ہم گھڑی میں محتاج ہو جائیں گے، گھڑی میں مفلس ہو جائیں گے، گھڑی میں ہم فقیر ہو جائیں گے، ذرا سی دیر لگتی ہے اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ عطا کا سلسلہ چلتا رہے، وہ ہمیں دیتا رہے، تو ضروری یہ ہے کہ اس کے آگے سر کو جھکائے رکھیں اس کے، کیونکہ ساری چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، رزق اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، طاقت اس کے ہاتھ میں، شہرت اس کے ہاتھ میں، علم اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا جھکنا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ صرف میں کہہ رہی ہوں، بلکہ وہ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ قادر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے پہ اسی کا اختیار ہے، وہی قادر، وہی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اسی کی قدرت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کی قدرت ہے، اس نے کہہ دیا صاف صاف کہ ملک ہمارے قبضے میں ہے۔ اب ملک وہ والا ملک نہیں جو ہمارے یہاں کا ملک ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کے ملک کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں باؤنڈریز ہوتی ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ برما ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ چائنا ہے، یہ جاپان ہے، یہ امریکہ ہے۔ تو ہمارے یہاں کے ملک کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں باؤنڈریز ہوتی ہیں،
जहां कोई बाउंड्री ना हो, जहां कोई दीवार ना हो, जहां सारी वॉल्स गिर जाएं। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मग़रिब भी उसी का है, मशरिक़ भी उसी का है। तो मुल्क जो उसके हाथ में है वो मुल्क नहीं है जिसकी बात हम लोग किया करते हैं। वो मुल्क है कि जिसमें कोई बाउंड्री ना हो, कोई वॉल ना हो, कोई दीवार ना हो, बल्कि मशरिक़ भी उसका हो, मग़रिब भी उसका हो, तो वो मुल्क उसका है। और वो कह रहा है जब वो मुल्क हमारा है तो फिर कुदरत भी हमारी ही है, मुल्क के ऊपर हमारी कुदरत है। और दुनिया में जिन लोगों को तुम साहिबे मुल्क समझ रहे हो, दुनिया में तुम जिन लोगों को बादशाह समझ रहे हो, वो साहिबे मुल्क नहीं है। हमने उन्हें बनाया तो वो साहिबे मुल्क बन गए, हमने उन्हें बनाया। और जब हमने इस बनाई हुई दी हुई हुकूमत को वापस ले लिया तो वो 2 गज जमीन के लिए भी तरस गए। कहा इसलिए कि देना भी हम जानते हैं तो लेना भी हम जानते हैं। कहा हमने दिया वो अकड़ गए, हमने वापस ले लिया वो 2 गज जमीन के मोहताज हो गए। हम देना भी जानते हैं। और तारीख का हर पलटता हुआ वर्क बताएगा कि हुकूमत फिरौन की नहीं थी, हुकूमत उसकी थी कि जिसने दरिया में डिबो दिया। हुकूमत नमरूद की नहीं थी, हुकूमत उसकी थी कि जिसने एक मच्छर के जरिए से उसके सरे पुरखून को झुका दिया। हुकूमत शद्दाद की नहीं थी, हुकूमत उसकी थी कि जिसने बनाई हुई जन्नत में कदम भी नहीं रखने दिया। हाजी ने मजलिस हुकूमत उसकी थी कि जिसने सिकंदर को सबके लिए इबरत बना दिया। तो हुकूमत उसकी थी, किसी की हुकूमत नहीं, कोई साहिब हुकूमत नहीं। इंशाअल्लाह आने वाली मजलिस में इन चीजों पर बड़ी तफसील से बात होगी, बड़ी तफसील से आने वाली एक मजलिस इंशाअल्लाह इसी बात पर होगी कि कौन साहिबे मुल्क है और किसके आगे झुकना चाहिए, किसके आगे हमें झुकना चाहिए और उसको झुकना कितना पसंद है और उसको अकड़ना कितना बुरा लगता है। एक सलावत करे जाओ अपनी ताकत का ऐलान, समझे जाओ अपने को ताकतवर। एक दिन ऐसा आने वाला है जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। यही तो नमरूद ने कोशिश की थी कि कोई बच्चा पैदा होने न पाए ताकि मूसा दुनिया में आने न पाए। पूरी उसने कोशिश कर डाली कि मूसा दुनिया में ना आने पाए। जाने कितनी माओं के पेटों को लेके डाला, न जाने कितने बच्चों को मरवा डाला, न जाने कितने बच्चों को तहे तेज करा डाला। मगर कुदरत ने कहा कि यहाँ तक तुम्हारा इख्तियार था, तुम्हारी ताकत थी, तुमने अपनी ताकत दिखा ली, अब हमारी ताकत देखो। कहा तुम चाहते हो कि मूसा दुनिया में आने न पाए, तुम्हारी ही गोद में मूसा को पलवा देंगे। तुम्हारी ही गोद में अगर मूसा को न पलवाया तो फिर हम परवरदिगार कैसे। कहा वहां तक तुम्हारी हुकूमत थी, तुम्हारा इख्तियार था, अब हमारा इख्तियार देखो। तो हमारा इख्तियार तुम चाहते हो मूसा दुनिया में ना, तुम दुनिया की बात करते हो, हम तुम्हारी गोद में मूसा को परवरिश कराएंगे। क्या करना मिल्कियत के ऊपर, क्या करना दौलत के ऊपर। आप तो सोच रहे होंगे वो भी साहिबे मुल्क है तो हमारी भी कुछ ना कुछ मिल्कियत है, हमारा भी कुछ ना कुछ इख्तियार है। मगर ऐसा इख्तियार है, ऐसी मिल्कियत है कि मान लीजिए कि कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई नए मॉडल की गाड़ी खरीद ली, कोई घर बनवा लिया, थोड़ी सी करेंसी बैंक में आ गई तो हम अकड़ने लगे। मगर हमारे इख्तियार में और उसके इख्तियार में बड़ा फर्क है। उसका मामला क्या है, हमारा मामला क्या है। हमारा मामला ये है कि हमने जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदी तो प्लॉट ही रहेगा। हम अगर ये चाहें कि जरूरत के वक्त वो प्लॉट हमारे लिए रुमाल बन जाए तो नहीं बनेगा। मान लीजिए ये माइक मेरी मिल्कियत है, अब अगर मैं ये चाहूं कि ये एक्टिवा बन के मुझे घर तक पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचाएगा। माइक है तो माइक रहेगा। मैं चाहूं कि गाड़ी को मैं किसी कोई और शक्ल दे दूं, गाड़ी करेंसी नोट में बदल जाए, गाड़ी नहीं बदलेगी, गाड़ी रहेगी। मुझे जरूरत है अगर करेंसी की तो वो गाड़ी नोट में नहीं बदलेगी जब तक कि हम उसे सेल ना कर, जब तक वो गाड़ी रहेगी। तो हमारी मिल्कियत क्या है, हमारी मिल्कियत ये है कि हम चीजों को के मालिक तो हैं लेकिन हम उन्हें बदल नहीं सकते, हम उनमें तब्दीली नहीं ला सकते। वो ऐसा है कि वो जब तक चाहेगा पानी रहेगा, वो जब तक चाहेगा जमीन का फर्श बिछा रहेगा, वो जब तक चाहेगा आसमान रहेगा।
लेकिन जब वो चाहेगा एक दिन ऐसा आएगा कि ना पानी होगा, न जमीन का फर्श होगा, न आसमान होगा। जब वो चाहेगा तो अपनी मिल्कियत में तब्दीली ले आएगा, और वो जब चाहेगा तो मिल्कियत वैसे ही रहेगी। हमारी मिल्कियत ऐसी है कि हम चाहें भी तो अपनी मिल्कियत में तब्दीली नहीं ला सकते, और इसीलिए हमारे लिए हुक्म ये है कि ला तमशे फिल अर्ज़ि मराहा, कि जमीन पर अकड़ कर न चला करो, जमीन पर अकड़ कर न चला करो। कुरान मजीद कह रहा है ला तमशे फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पर अकड़ के न चला करो, इसलिए कि जब तुम जमीन पर पैर मार के चलते हो तो जमीन कहती है आने दो वो दिन के जब तुम हमारी गोद में आओगे, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी कुदरत क्या है। एक दिन वो आने वाला है जब तुम हमारी गोद में आओगे। तो हम किस बात पर अकड़ रहे हैं? खरीद लिया प्लॉट तो इसमें अकड़ गए, जमीन खरीद ली तो इसमें अकड़ गए, क्या हम जमीन वाले हैं? अभी ये चलती हुई सांसें रुक जाए, अभी ये नब्ज थम जाए, अभी ये जिस्म ठंडा हो जाए, अभी ये चलती हुई जबान रुक जाए, और फिर उसी खरीदे हुए प्लॉट में हमें दफन कर दिया जाए, और कुछ दिन बाद जब उस जमीन को खोल के देखा जाए कि देखें जाकिरा का हाल क्या हुआ, तो वो जमीन जिसके हम मालिक थे उसी जमीन ने हमें पीस के सुरमा बना दिया, उसी जमीन ने हमें पीस के। ये कैसी मिल्कियत है, ये कैसा इख्तियार है, ये कैसी ताकत है? हमारी मिल्कियत थी, लेकिन उस वक्त तक मिल्कियत थी जब तक हम जिंदा थे। इधर आंखें बंद हुई, इधर नब्जें रुकी, इधर सांसें रुकी, इधर दिल ने धड़कना बंद किया। अब जो अपनी मिल्कियत थी वो किसी और की मिल्कियत हो गई। अब वो हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि हमारी अपनी मिल्कियत हमें पीस कर खाक किए दे रही है। तो हमारी मिल्कियत में और उसकी मिल्कियत में ये फर्क है। हमारी मिल्कियत वो कि लिमिटेड, उसकी मिल्कियत वो कि अनलिमिटेड। हमारे यहाँ अगर कोई मुल्क वाला भी हो जाए वो भी लिमिटेड होता है। ये तो छोटे छोटे प्लॉट की मैं बात कर रही हूँ, ये तो छोटी छोटी मिल्कियत की बात कर रही हूँ। जो अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं उनके मुल्क का भी आलम होता है, उनकी भी एक लिमिट होती है। मैंने कह दिया, उनकी भी एक बाउंड्री होती है, एक वॉल होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और फिर कुछ पता नहीं चलता है कि वो मुल्क किस दिन हिस्सों में बढ़ जाए। बड़ी जल्दी आजकल मुल्क बढ़ रहे हैं हिस्सों में, टूट रहे हैं मुल्क, और बड़े जल्दी हिस्सों में बढ़ रहे हैं। उसका मुल्क हिस्सों में नहीं बटा करता, उसका मुल्क पूरा का पूरा उसका है। अच्छा, हमारी मुल्क के पॉपुलेशन का मामला ये है कि देखिए आजकल जो मुल्कों की और दुनिया की चीजें हैं उनमें तीन चीजों का मामला बहुत। एक तो आजकल किसी को ये नहीं पता होता कि मुल्क की बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, कब टूट जाएगी, कब दूसरा मुल्क उसमें बन जाएगा, तो ये पता नहीं। आजकल बड़ी तेजी से मुल्कों में तब्दीली आ रही है, मुल्क बढ़ रहे हैं आपस में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें ये मालूम नहीं होता, हमें ये इल्म नहीं होता कि मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है। अभी गिना गया, अभी 2 बच्चे पैदा हो गए, पॉपुलेशन में गड़बड़ हो गई। हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए लमसम अंदाजा तो लगा लिया जाता है, एक अंदाजे के मुताबिक इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन एक्यूरेट पॉपुलेशन का अंदाजा वही लगा सकता है कि जिसकी नजर हर एक के ऊपर हो, जिसकी नजर हर एक के ऊपर हो। तो एक तो ये चीज है कि जिसका पता नहीं होता कि कब बढ़ जाए और कब कम हो जाए। एक चीज और है, वो हमारे और आपकी चीज है कि जिसका पता नहीं चलता है। जिस तरह से मुल्कों का पता नहीं चलता, जिस तरह से कि पॉपुलेशन का पता नहीं चलता, उसी तरह से हमें अपने फैशन का भी पता नहीं चलता कि कब शुरू और कब खत्म हो जाए। फैशन का भी यही आलम है। हम बेवकूफ बन रहे हैं तो दुनिया बेवकूफ बना रही है, हम खिलौना बने हुए हैं तो कंपनीज हमें खिलौना बना रही है, और इतनी तेजी से फैशन बदल रहे हैं। खातिन में लेडीज में आके बोल तो दीजिए खुला फैशन, ये नहीं देखेगी कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये नहीं देखेगी मेरी पर्सनालिटी उसमें जमेगी या नहीं जमेगी, ये नहीं देखेगी कि वो हमारे लिए बना भी है या नहीं बना। फैशन में है तो फिर हमें तो उसको पहनना ही पहनना है, फैशन तो करना ही करना है। और वो फैशन इतनी तेजी से बदलता है कि सुबह में आता है शाम में बदल जाता है। जो फैशन करने वाले वो जानते हैं, सुबह में आता है शाम में बदल जाता है। मैंने अखबार में एक वाकया पढ़ा कि हुआ कि एक साहब दुकान पर कपड़ा लेने के लिए गए, कपड़ा खरीदने के लिए वहां पर पहुंचे तो दुकानदार से उन्होंने कपड़ा खरीदा, पेमेंट नहीं किया और भाग गया। तो वो दुकानदार उनके पीछे पीछे दौड़ा, कहने लगा अरे पेमेंट तो करते हैं, वो समझे चोर है। वो दौड़ा पीछे पीछे, अरे पेमेंट तो करते जाइए, पेमेंट तो करते जाइए। वो आगे आगे दौड़ रही, पीछे पीछे दौड़ रहा है, यहाँ तक कि घर के दरवाजे तक पहुंच गए। जब घर के दरवाजे पर पहुंच गए तो दुकानदार ने इनको पकड़ा और कहा कि हमारे आपने पेमेंट तक नहीं किया। तो वो भी बहुत
बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे तुम क्या समझते हो मैं क्या चोरी करके भागा था? तो कहने लगे पेमेंट नहीं किया और बिना पेमेंट के आगे फिर बोलते हो तुम समझते हो क्या मैं चोरी करके भागा था? बोले बेवकूफ, मैं चोरी करके नहीं भागा था, मैं इसलिए तेजी से भागा था कहीं ऐसा ना हो फैशन बदल जाए, इसलिए मैं इतनी तेजी से भागा था। तो फैशन का भी आजकल कुछ पता नहीं, जिस तरह से पॉपुलेशन का कुछ पता नहीं है। लोग बेवकूफ बना रहे हैं तो हम बेवकूफ बन रहे हैं, और बेवकूफ बनने के साथ साथ हमारी दलील क्या होती है, हमारा लॉजिक क्या होता है कि भाई हमें दुनिया को भी देखना है, हमें सोसाइटी को भी देखना है, हमें लोगों का मुंह भी करना है। कभी ये ख्याल नहीं आता कि हमें नबी का सामना भी करना है, हमें अहले बैत का सामना भी करना है, हमें अली का सामना भी करना है, हमें उसका सामना भी करना है जो पर्दे गैब में बैठा हुआ है, हमें अपने रब्बुल आलमीन का सामना भी करना है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। उसकी मिल्कियत में और हमारी मिल्कियत में बड़ा फर्क है। वो और तरह का मालिक है, हम और तरह के मालिक हैं। हम ऐसे मालिक हैं कि उसने मालिक बना दिया तो मालिक है, और उसने मोहताज बना दिया तो मोहताज। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जितना मिल्कियत देता जाता है, जितना मालिक बनाता जाता है, हम उतने मोहताज होते जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं किस तरह से। अभी किसी को कोई कुर्सी मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, भाई मालिक उसने बताया मालिक वो होता है जो मोहताज नहीं होता किसी का, जो किसी का मोहताज नहीं होता। मालिक वो उसे कहा जाता है कि जिसे ना तो किसी की हिफाजत की मोहताजगी, ना उसे लश्कर की मोहताजगी, ना उसे फौज की मोहताजगी, ना उसे ताज की मोहताजगी, ना उसे तख्त की मोहताजगी, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। तुम कहा तुम ऐसे मालिक हो कि तुम्हें जितना जितना मिल्कियत दी जाती है तुम उतने उतने मोहताज हो जाते हो। और क्या होता है, जिसको जितना कम मिला है वो उतना कम मोहताज है, जिसको जितना ज्यादा मिला है वो उतना ज्यादा मोहताज है। और मैं मिसाल देके अपनी छोटियों के, अपने बच्चों के सामने बताऊं कि अगर अभी किसी को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, कोई बड़ी कुर्सी मिल जाए, कल तक तो यह आलम था कि सब्जी मंडी में भी जाते थे, बीड़ी की दुकान पे, पान की दुकान पे भी जाके बैठते थे, मजलिसों महफिलों में भी आते थे। लेकिन अभी अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, अब मोहताज हो गए। अब किसके मोहताज हो गए? का बॉडीगार्ड्स के मोहताज हो गए। अब बॉडीगार्ड्स के मोहताज हैं। अब जब तक बॉडीगार्ड्स साथ ना हो कदम नहीं निकाल सकते, मारे जाएंगे वरना। अच्छा, उनसे भी बड़े अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो अब पोजीशन क्या है? अब प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं ये कह दें कि जरा हमको उस रास्ते से ले चलो, हमको इस रास्ते से नहीं जाना, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। नहीं, उस रास्ते पे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि वहां हिफाजत का इंतजाम नहीं है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि वहां हिफाजत का इंतजाम नहीं है। कल तो सब जगह जा सकते थे, आज प्राइम मिनिस्टर हो गए तो मोहताज हो गए। किसके मोहताज हो गए? हिफाजत के मोहताज हो गए, बॉडीगार्ड्स के मोहताज हो गए, अब एडमिनिस्ट्रेशन के मोहताज हो गए। इसलिए कि अब अल्लाह ने तुम्हें किसी चीज का मालिक बना दिया, जितना जितना मालिक बनते जाते हो उतने उतने मोहताज होते जाते हो। उसकी और तुम्हारी मिल्कियत में फर्क ये है कि वो जितना बड़ा मालिक है, वो इतना बड़ा मालिक है कि वो मोहताज नहीं है, ना वो बॉडीगार्ड का मोहताज, ना वो लश्कर का मोहताज, ना वो फौज का मोहताज, ना वो तख्त का मोहताज, ना वो ताज का मोहताज। वो बेनियाज है और बेनियाज रहेगा। तुम मोहताज हो, मोहताज रहोगे। और इसलिए कहा गया लातम शेफिल अर्ज़े मराहा, जमीन पर अकड़ के ना चला करो, इसलिए कि तुम मोहताज हो, वो बेनियाज है। सलावत भेजिए। जिन्हें हम ताकत देकर भेजते हैं, जिन्हें हम इख्तियार देकर भेजते हैं, वो भी मोहताज नहीं होते किसी। अगर उनके पास तख्त नहीं है वो तब भी मोहताज नहीं है, वो ताज नहीं है तब भी मोहताज नहीं है, उनके पास फौज नहीं है वो तब भी मोहताज नहीं। और उनकी मोहताज न होने की निशानी ये है, दलील ये है, लॉजिक ये है उनके मोहताज न होने की कि तमाम जमाना ठोकरें खाता हुआ उनके दर पर आता है, वो किसी के दर
दर पे जाते हुए नजर नहीं आते। ये चीज बताती कि वो मोहताज नहीं है, जमाना उनका मोहताज है। या तो जमाना उसका मोहताज है, या फिर वो जो उसके नायब हैं जिन्हें उसने अहले बैत अतहार कहा, उनका भी जमाना मोहताज है। और इतना मोहताज है कि बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा मुल्क वाला, बड़े से बड़ा मिल्लत वाला, बड़े से बड़े इक़्तिदार वाला उनके आगे सर झुकाए नजर आता है। खलील अहमद नहवी अरबी लिटरेचर की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत। इतना इल्म है खलील अहमद नहवी के पास के उसके शागिर्दों ने खुशामद में आके उससे ये कह दिया था कि आपके पास तो इतना इल्म है कि अगर आप चाहें तो आप दावाए नबूवत कर दें, नबूवत के लिए क्लेम कर दें और हम आपको नबी मान लेंगे। खुशामद करने वालों ने कह दिया था। इतना इल्म था उसके पास कि लोग कहते थे कि इतना इल्म है कि आप अगर नबी का दावा कर दें, नबी होने का क्लेम करें तो हम आपको नबी मान लेंगे। तो खलील अहमद नहवी को वही लोग देखते थे कि वो एक दर पे सर झुकाए रहता था, और वो दर किसी और का नहीं, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दर है। तो इस दर पे वो सर झुकाए रहता है। तो लोगों ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि आपके पास इतना इल्म है कि अगर आप नबूवत का क्लेम करने लगे तो हम आपको नबी मान लें, और आपका ये आलम है कि आप अली के दर पे सर झुकाए हुए नजर आते हैं, अली की चौखट पे सर झुकाए हुए नजर आते हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने आपको दर अली पर झुकने पे मजबूर कर दिया? हाज़िन मजलिस वो जुमला उसने कहा है कि तारीख में सुनहरी लफ्जों में लिखने के काबिल। कहता है कि एहतियाजुन कुल्लो इलह व इस्तगनाहु अनिल कुल दलीलुन अला इन्नहु इमामुल कुल। तमाम दुनिया का मुहताज हो के दरे अली पर आना और अली का किसी दर पे ना जाना इस बात को बताता है कि अली तमाम जमाने का इमाम है। अली तमाम जमाने का इमाम है। हाज़िन मजलिस, इस एक जुमले ने सबके जहनों को अपनी तरफ मोड़ लिया कि जमाना ठोकरे खा के दरे अली पर आता है, अली कभी किसी के दरवाजे पे जाता हुआ नजर नहीं आया। एक सलवात भेजिए हवा भी ये कहती चली अली 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 अली। कौन है अल्लाह का वली अली 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 अली। कौन है दामाद नबी अली 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 अली। नारे हैदरी या अली, नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मजलिस तमाम जमाना इनके दर पे नजर आया और ये कभी किसी के दर पे जाते नजर नहीं आए। हमारी मिल्कियत का मामला ये है, मैंने अभी अर्ज कर दिया कि जब तक जिंदा रहेंगे जब तक मालिक रहेंगे, जब मर जाएंगे तो इक़्तिदार किसी और के हाथों में चला जाएगा, मिल्कियत किसी और के हाथों में आ जाएगी। हमारी मिल्कियत जब तक है, जब तक के नब्ज़ें चलती रहे, जब तक आंखें खुली रहे, जब तक दिल धड़कता रहे, जब तक ज़बान चलती रहे, जब तक जिस्म गर्म रहे, जब तक मिल्कियत है। इनकी मिल्कियत वो है कि ये कब्रों में सोते रहते हैं और इक़्तिदार चलता है। इनकी ताकत वो ये है कि वो कब्रों में होते हैं और वो अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। बुर्रा इब्न कैस एक ऐसा बादशाह गुजरा है कि जो अली का इतना बड़ा दुश्मन था कि लोग जिंदगी में दुश्मन होते हैं, मरने के बाद दुश्मन है, दुनिया से जाने के बाद दुश्मन। बुर्रा इब्न कैस का दरबार सजा हुआ है। एक मतलब बुर्रा इब्न कैस हुक्म देता है कि हमारे आबा और अजदाद का जिक्र किया जाए और उनके बारे में बताया जाए, उनकी जिंदगी के बारे में बताया जाए, उनकी बायोग्राफी पढ़ी जाए। तो मौर्य खड़ा हुआ, तारीख लिखने वाला खड़ा हुआ और उसने बायोग्राफी पढ़नी शुरू करी, इनके बुजुर्गों के बारे में बताना शुरू किया। और जब बताना शुरू किया तो हर एक के बारे में आखिर में यही आया कि मारे गए।
मारे गए। एक मर्तबा बुर्रा इब्न कैस ने आस्तीन उल्टी कहने लगा, कौन ऐसा मारने वाला पैदा हो गया जिसने मेरे सारे आबा और अजदाद सारे फोर फादर्स को मार डाला? कौन था वो ऐसा मारने वाला? आस्तीन पलटी तो मौलवी इब्न तारिक पढ़ने वाले आलिम ने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर जान की माफी हो तो बता। कहा हाँ बता, किसने मारा? कहा दामाद पैगंबर ने मारा, अली ने मारा। कहने लगा अली ने मारा? बस एक मर्तबा तलवार को खींच लिया। कहा अली ने मेरे आबा और अजदाद को मारा, मेरे फोर फादर्स को मारा, मैं अभी जाके अली से बदला लूंगा। लोगों ने कहा हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? अली तो नजफ में कब्र में आराम फरमा रहे हैं, आप कैसे उनसे बदला लेंगे? कहा हम कब्र में लेटने वाले से बदला लेंगे। ये कह के तलवार खींच के नजफ में आया, और अकेला नहीं आया, एक मरने वाले से बदला लेने के लिए आया, फौज साथ लेके आया। और फौज साथ लेके आने के बाद नजफ के अंदर आया। नजफ के अंदर आने के बाद बिल्कुल ज़रीह मुबारक के सामने आया, तलवार खींची हुई है, आस्तीनें चढ़ी हुई है, मुंह से कब बाहर निकल रहा है, गुस्से का आलम है, थरथरा रहा है। एक मर्तबा ज़रीह मुबारक के सामने आया और तलवार खींची उसने। जैसे ही तलवार खींची, बस एक मर्तबा ज़रीह मुबारक से 2 उंगलियां बाहर निकली। 2 उंगलियां, आज भी उन 2 उंगलियों के निशान उस तरफ हैं जहां के खातीन बैठती हैं, जाके जहां लेडीज का पोर्शन है, उस जगह पर ज़रिए मुबारक में 2 उंगलियों के निशान हैं। तो 2 उंगलियां बाहर निकली। 2 उंगलियां बाहर निकली, लोगों ने देखा एक बिजली कूदी। बिजली कूदने के बाद जब एक मर्तबा लोग देखने के काबिल हुए तो क्या देखा कि 2 टुकड़े होके गिरा, और 2 टुकड़े भी ऐसे टुकड़े के बराबर के टुकड़े। मुझे ये नहीं बताना आपको कि अली ने कत्ल कैसे किया, अली मुअज्जिज़ुल्लाह है, वो कत्ल कर देते हैं, मगर सवाल के गिर गया, 2 टुकड़े होकर कत्ल कर दिया गया। मगर हैरत की बात ये, एक कतरा भी खून का नजफ में गिरा नहीं, एक कतरा भी खून का कब्र अली पर गिरा नहीं। सिपाही दौड़े दौड़ के मैयत को बादशाह की उठा के बाहर लाए। जैसे ही हुदूद हरम से बाहर लाए, जैसे ही हरम की लिमिट से बाहर आया, खून मैयत से बहना शुरू हो गया। अली ने बताया हम आए तत्हीर वाले हैं, हमारी कब्र पर निजासत आ नहीं सकती, इसलिए हमने इसके खून को गिरने नहीं दिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सबका मौला अली अली, फातिमा का शौहर अली अली, ज़ैनब का बाबा अली अली, हसन का बाबा अली अली, हुसैन का बाबा अली अली। जरा प्यार से बोलो अली अली, जरा मोहब्बत से बोलो अली अली, जरा जोर से बोलो अली अली। एक नारे हैदरी या अली, मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात। हम ऐसे मालिक हैं कि मरने के बाद चाहे कब्र पे कुछ भी होता रहे, हमारा इख्तियार नहीं है, चाहे कब्र पे कुछ आलम हो जाए। अली ने बताया साहिब इख्तियार इसे कहते हैं कि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी हमारे इख्तियार ये, हमारी ताकत ये है कि हम निजासत को अपनी कब्र पे आने नहीं देते। निजासत अब जो इनकी कब्र पर जाता है उसके लिए ये साफ है, निजासत नहीं है, वो पाकीज़गी है जो कब्रों पे जा रहे हैं। और जो कब्रों पे नहीं जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम निजासत हैं, कब्र अली हमें कबूल नहीं करेगी। जो कब्र अली पे नहीं जाते और कहते ये हैं कि हम कब्रों पे नहीं जाया करते, हम कब्रों की ज़ियारत को नहीं जाते, जा ही नहीं सकते, कैसे कदम रखेंगे? इसलिए कि अली के कब्र पर निजासत नहीं जाती है, अहले बैत के कब्र पे निजासत नहीं जा सकती, इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे। तो हाज़रीन मजलिस, ये एक वाकया नहीं है इख्तियार का। दुर्रानी ये मुसलमान बादशाह है, वाकयात दुर्रानी में ये वाकया लिखा हुआ है कि जब उसको ये पता चला कि ये कब्र अली का मौजिजा ये है और उनके इख्तियार का आलम ये है, मिल्कियत किसे कहते हैं मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो अकड़ जाते हैं मिल्कियत पर, तो ये अल्लाह बताएगा और अल्लाह के नायब बताएंगे कि आओ हम तुम्हें बता मिल्कियत किसे कहते हो। और इतना इक़्तिदार होने के बावजूद भी हम अकड़ते नहीं हैं।
जितना हमें मिलता जाता है हम उसके सजदे करते जाते हैं, सजदे करते जाते हैं, सजदे करते जाते हैं। हमारा झुकना ये बता रहा है कि उसकी अता जब ही होती है जब इंसान झुकता है। तो ये पहला मौका नहीं है जब बुर्रा इब्न कैस का खून नहीं गिरा नजफ में, नहीं, और भी ऐसे मौके हैं। ये अब तो वहां पर रोजा बन चुका था, जरिए मुबारक रखी हुई थी। एक वक्त तो ऐसा था कि जब सिर्फ एक टीला बना हुआ है, सिर्फ एक टीला बना हुआ है, लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि दामाद पैगंबर के कब्र है। तो हारून रशीद शिकार के इरादे से आया और आने के बाद में उसने अपने कुत्तों को हिरन के पीछे दौड़ाया, और जैसे ही कुत्तों को हिरन के पीछे दौड़ाया, एक मर्तबा हिरन दौड़े और दौड़ने के बाद एक टीले के ऊपर, मिट्टी के टीले पर चढ़ गए। हारून रशीद सोच रहा था कि पीछे पीछे कुत्ते भी जाएंगे, कुत्ते नीचे रुक गए, हिरन ऊपर चढ़ गए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हिरन फिर से नीचे आए तो फिर इसने कुत्तों को ललकारा, तो फिर कुत्ते दौड़े, फिर हिरन उसी टीले पे चढ़ गए। कई मर्तबा यही हुआ, इसने अपने कुत्तों को खुद मारा कि किसी सूरत से वो उनके पीछे जाए, उधर टीले पे कदम नहीं रखा। तो अब ये परेशान हो गया, इस टीले में ऐसी कौन सी बात है, इस जगह में ऐसी कौन सी बात है। लोगों से पता किया कि ये कौन सी जगह है, ये किसकी कब्र है, या कि क्या मामला है इसका, तो कोई बताने पर तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक बूढ़े ने बताया, उसने कहा अगर जान के अमान पाऊं तो मैं बताऊं। कहा कि किसकी कब्र है, ये कौन सी जगह है, कहा ये दामाद पैगंबर अली की कब्र है। तो हारून रशीद ने जब ये सुना और उसने ये बरकत देखी कब्र की, ये इख्तियार देखा, तो उसने इस कब्र के ऊपर कुब्बा बनवा दिया, रोजा बनवा दिया। दुश्मन है, अहले बैत का चाहने वाला नहीं है, मासूम का कातिल भी है, कत्ल भी किया है इसने हमारे और आपके साथ में इमाम को। लेकिन क्योंकि उसने एक एहसान कर दिया था अली के ऊपर, तो अली ने उसके एहसान का सिला ये दिया कि अली ने कहा कि सारे मासूम के कत्ल करने वालों की कब्र पे कुत्ते लौटेंगे। जितने भी मासूम को जिन्होंने कत्ल किया उनकी कब्रों का निशान बाकी नहीं रहेगा। एक सिर्फ तू ऐसा है कि तूने हमारे ऊपर एहसान किया, हमारी कब्र पे कुब्बा बनवाया है, लिहाजा तेरी कब्र मौजूद रहेगी। हारून रशीद की कब्र मौजूद है, आज भी सुना है ना आपने कि रोज़े इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सरहाने या पाए की कहीं उसके कब्र मौजूद है। कहा कि भले ही तू मासूम का कातिल है मगर तेरा एहसान है, जहन्नुम में हमें नहीं मालूम कि तेरे साथ अल्लाह क्या फैसला करने वाला है, मगर अली के ऊपर एहसान करने का सिला हम ये देंगे कि कयामत तक तेरी कब्र को बाकी रखेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद। हर एक मिजान में तोला, अली मौला, अली मौला, लगे जब हैदरी नारा, अली मौला, अली मौला, तू ही पहला नहीं चौथा, अली मौला, अली मौला, करे राजूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, फरिश्ता अर्श पर बोला, अली मौला, अली मौला, अज़ादार फर्श पर बोले, अली मौला, अली मौला, परिंदा शाख पर बोला, अली मौला, अली मौला, जमी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वसिफ। तो मुसलमान बादशाह है बुर्रा, और जब उसको ये पता चला कि टीला था, कब्र भी नहीं थी, निशाना कब्र भी नहीं था, लेकिन कुत्ते वहां पर चढ़े नहीं, तो दुश्मन नहीं है अहले बैत के चाहने वालों में से। लेकिन उसने सोचा मैं भी आजमाऊं। कभी कभी हम लोगों के दिल में एक ख्याल आता है ना, ये यकीन की कमी होती है कि हम आजमा के देखें। कितनी बार आजमाया जाएगा, कितनी बार कोई आजमाया। वो ख्याल आया कि मैं भी आजमा के देखूं, तो अपने कुत्ते को लेके, चाहने वालों में से है दुश्मन, अपने कुत्ते को लेके नजफ अशरफ गया। दो चीजें इसने सुनी थी कि एक तो शराब रोजे पे नहीं जा सकती, शराब वहां जाती है तो सिरके में बदल जाती है, सिरका बन जाता है, और एक ये कि कुत्ता कब्र अली पर नहीं कदम रख सकता, निजासत कब्र अली पर कदम नहीं रख सकती, तो कुत्ते को लेकर गया और खुद दाखिल हो गया, लेकिन कुत्ता दाखिल नहीं हुआ। बहुत मारा, बहुत पीटा, लहू लहान कर दिया कुत्ते को, खून खान कर दिया, लेकिन कुत्ते ने कदम नहीं रखा। तो जब ये मौजिजा देख लिया तो अब पछताया, शर्मिंदा हुआ।
लिहाजा अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि सोने की एक जंजीर बनाओ, मेरे गले में डालो और मुझे कुत्ते की तरह से खींचते हुए रोजे में लेकर जाओ। इस तरह से लेकर जाओ जिस तरह कुत्ते को खींचते हो, क्योंकि मैंने अकीदे में कमजोरी दिखाई थी, मैंने ईमान में यकीन में कमजोरी दिखाई थी। मेरी सजा ये है कि मुझे कुत्ते की तरह से खींचते हुए रोजे के अंदर लेकर जाओ। सोने की जंजीर बनाई गई और सिपाहियों ने हुक्म की इताअत की और कुत्ते की तरह से खींचते हुए इसे रोजे में लेकर गए। जब रोजे में लेकर गए तो इसने अपने ताजे हुकूमत को उठाया सर से और उठाने के बाद जरीए मुबारक पर रख दिया और रखने के बाद इसने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत दिला दे, हिंदुस्तान की हुकूमत दिला देगा तो ये ताज शाही तेरी नजर कर दूंगा हमेशा के लिए। और सबको मालूम है कि दुर्रानी को हिंदुस्तान की हुकूमत मिली, हिंदुस्तान की हुकूमत मिल गई। तो जब मिल गई तो ताज शाही को हाथों में उठाए हुए आया और जरीए मुबारक पर रख कर कहा कोई बादशाह नहीं है जिसे तुम बादशाह बना दे, वो बादशाह है। सलावत पेश कहा कोई बादशाह नहीं है जिसे तुम बादशाह बना दो, वो बादशाह है। वही हुकूमत करता है जिसकी तुम हुकूमत मान लो, जिसे तुम इख्तियार दे दो, इख्तियार दे दो। अब जमाना ये कहता है, हमारे बच्चों के सामने अक्सर ये सवाल होता है कि अगर अहले बैत की हुकूमत थी तो अहले बैत ने वापस ली क्यों नहीं? लोग ये सवाल करते हैं और हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या जवाब दें। कहते हैं क्यों बनी अब्बासिया को हुकूमत करने दी, क्यों बनी उमैया को हुकूमत करने दी, क्यों नहीं हुकूमत वापस ली अगर हुकूमत पर हक था। और मिसाल ये दी जाती है कि अगर कोई किसी का 10 रुपए का नोट ले ले तो वो उसको बख्शता नहीं है, किसी का कोई पर्स छीन के भाग जाए तो पीछे दौड़ता है। तो इतनी बड़ी हुकूमत और इन्होंने दे दी और वापस भी नहीं ली, तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो वापस नहीं दी? एक जवाब वो था जो हमारे और आपके साथ में इमाम ने हारून को दिया था। अभी मैंने पिछली मजलिस में पढ़ा भी था मैंने कि जब उसने कहा हमने सुना है कि आप हमारी कुव्वत, हमारी इक़्तिदार वापस लेना चाहते हैं, तख्त और ताज वापस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने फरमाया था कि तू क्या समझता है कि ये जो छोटी सी जमीन पर तू हुकूमत कर रहा है ये हमारी हुकूमत है? हमारी हुकूमत तो जमीन और आसमान के ऊपर है। ये इमाम का जवाब था। लेकिन मैं बच्चों के लिए बता दूं, बच्चों को मिसाल समझा दूं कि जब तुमसे कोई इस तरह के सवाल किया करे कि अगर हुकूमत पर हक था अहले बैत का तो उन्होंने वापस क्यों नहीं ली, इमामों ने वापस क्यों नहीं ली हुकूमत, तो फिर उसे मिसाल दे के बताओ, उसे मिसाल देकर बताओ। और ये बड़ी अच्छी मिसाल है कि तुम उनसे कहो कि मान लो कि अहमदाबाद के किसी पॉश मार्केट में, बहुत अच्छे मार्केट में, जबरदस्त बड़े मार्केट में कोई मर्सिडीज आके रुके और उस मर्सिडीज से कोई बहुत पैसे वाला नीचे उतरे, यानी कीमती घड़ी, कीमती मोबाइल, कीमती लिबास, और वो नीचे उतरे और उसके बाद वो अपनी जेब से बटुआ निकाले और उस बटुए में हजार के नोट हो, उसके बैंक बैलेंस भी भरा पड़ा हो, उसकी तिजोरियां भरी पड़ी हो, उसके पास नए नए मॉडल्स की गाड़ियां हो, उसके पास कोई दौलत की इंतहा ना हो। लेकिन जब वो अपने बटुए से 1000 का नोट खींच के निकालने लगे, उसी बटुए से एक अठन्नी निकल के अगर नाली में चली जाए, बताइए क्या वो मुड़ के देखेगा? मुड़ के देखने का क्या सवाल है, वो तो परवाह भी नहीं करेगा कहाँ चली गई। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ एक अठन्नी होती है तो वो नाली में भी हाथ डाल देगा कि यही तो कुंजी थी, वो भी नाली में चली गई। तो हाज़रीन मजलिस, अब जाहिर बात है इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि जिनके हुकूमत का भी आलम हो कि बादल सर पे साया करके बताए कि हम भी तुम्हारी हुकूमत में आते हैं, चांद 2 टुकड़े हो के बताए कि तुम्हारा इख्तियार हमारे ऊपर भी है, संग्रेजे हाथों में तस्बीह करके बताएं कि तुम्हारा इख्तियार तो पत्थरों के ऊपर भी है, पलटता डूबता हुआ सूरज पलट के बताए कि तुम्हारा इख्तियार तो सूरज के ऊपर भी है। और अगर उनके हाथों का धूमन लाल और जवाहर में बदल जाए तो बदल के वो बताए कि तुम्हारा इख्तियार तो जवाहिरात के ऊपर भी है। तो जब इख्तियारात का ये आलम हो, तो अगर जमीन के कोई छोटे से हिस्से पर हुकूमत कर रहा हो तो ये पलट के भी नहीं देखेंगे उससे छीनना कैसा। सलावत भेजिए मौला ही मौला अली अली, हम सबका मौला अली अली, ज़ैनब का बाबा अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, जिब्रील का टीचर अली अली, जरा प्यार से बोलो, अली अली, जरा जोर से बोलो, अली अली, नारे हैदरी, या अली, नारे सलवात। अल्लाह
जर्रे के पीछे क्या जाएंगे? जिनके कब्जे में पूरा समंदर हो गए खतरे के पीछे क्या जाएंगे? जिनका आलम ये हो कि उनके कदम मोहरे नबूवत पर पड़ते हों, वो तख्त पे कभी कदम नहीं रखना चाहेंगे। जिनका आलम ये हो कि वो ठोकर मार दे तो मिट्टी सोना बन जाए, तो वो खाक में मिली हुई हुकूमत, मिट जाने वाली हुकूमतों के पीछे क्या जाएंगे? तो हाज़रीन मजलिस, जिनका इख्तियार होता है, जिनका इख्तियार होता है, वो छोटे इख्तियार के पीछे नहीं जाया करते, वो छोटे इख्तियार के पीछे नहीं जाया करते। दुनिया कहती रहे कि आले मोहम्मद ने अपना इख्तियार वापस नहीं लिया, आले मोहम्मद यही कहते रहेंगे, अहले बैत यही कहते रहेंगे कि हमारा इख्तियार जब छीना ही नहीं तो हम इख्तियार वापस कैसे लेंगे? हमारा कोई किसी में ताकत नहीं है हमारे इख्तियार को छीन ले। जब हमारा इख्तियार हमारे पास है तो फिर हम किसी से लेने के लिए क्या जाएं? और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवार सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत, मासूमीन के हक को गस्प करने वालों पर लानत बेशुमार लानत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुद का भी इख्तियार है और जाहिर बात है कि वही मामला हमारे लिए भी है कि हम छोटी सी मिल्कियत पे ना करें, बल्कि हम इस पर अगर हमें गुरूर करना भी है, हमें फख्र करना भी है, तो इस बात पे करें कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। इस बात पर न करें कि हम दौलत वाले हैं, इस बात पर न करें कि हम करेंसी वाले हैं, इस बात पर न करें कि हमारे पास ज्वेलरी बहुत है, इस बात पर न करें कि हमारे पास नए नए मॉडल्स की गाड़ियां हैं, इस बात पे न करें कि हमारे बंगलों बहुत शानदार हैं। नहीं, इस बात पे आकड़े कि हमें गुलामी मिली हुई है दर अहले बैत की। और आज शाम को इंशाल्लाह दर अहले बैत की गुलामी के ऊपर बात होगी। तो जब भी बात करें तो इस बात पे कि हमसे ज्यादा कौन साहिब इख्तियार इख्तियार होता है, कि हमें दर अहले बैत की गुलामी मिली हुई है, हमारे हाथ में दामन अहले बैत है। इसलिए हमारे इख्तियार और इख्तियार का कोई क्या अंदाजा है कि हम किसने साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार। हाज़रीन मजलिस, 2 सवालात किए गए हैं। अब मैं इससे पहले कि मैं रब्ते मसाइल शुरू करूं और अपने तक़रीर को ख़त्म करूं, तो उससे पहले मैं उन 2 सवालात के जवाब दे दूं। तो एक तो ये सवाल किया गया है कि अगर शौहर परेशान कर रहा है और तकलीफ का बाइस है तो उसको सुधारने के लिए क्या दुआ है? तो या बासितो, इसमें आज़म है, इसमें या बासितो, और परेशान करने से मतलब ये है कि वो परेशानी जो कि सटीक परेशानी है उसी के लिए पढ़ें। वो परेशानी जो आपने परेशानी बना रखी है उसमें, मतलब मान लीजिए कि अगर मैके जाने नहीं दे रहा है, बच्चों की परवरिश के लिए जोर दे रहा है, तो वो परेशानी नहीं है। नहीं, अगर आपको छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर कर रहा है, अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है दूसरों के सामने, क्योंकि बहुत बुरी बात है कि किसी की भी इंसल्ट किसी के सामने की जाए, और ना कि अपनी बीवी की, क्योंकि आपके घर की रौनक है। अगर आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं तो यकीनन आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों को आपकी माफ़ नहीं करता है, गुस्सा करता है, खाने को उठा के फेंक देता है, खाने में मिलमेक निकालता है, परेशान करता है, और ये कि जितना पैसा ज़रूरत का है नहीं दे रहा है, घर में पैसा पूरा नहीं ला रहा है, काम में काम चोरी दिखा रहा है। अगर कोई इस तरह से कोई भी अगर परेशानी खुदा न खास्ता आप लोगों को है, तो उसके लिए 5 मरतबा पहले दुरूद और उसके बाद 5 मरतबा बाद में दुरूद, और या बासितो 300 मरतबा पानी पर दम करें। लेकिन दम करने की शक्ल ये नहीं होनी चाहिए कि आप पानी पर फूके नहीं, बल्कि उसको इतना करीब कर लें कि जब आप पढ़ें तो आपके पढ़ने की गूंज पानी पर जाए। तो 300 मरतबा या बासितो, 300 मरतबा का मतलब ये है कि 3 तस्बीह आप या बासितो की पढ़ लें और पढ़ने के बाद उनको पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल हमसे ये किया गया था कि ये बताएं कि बच्चों को इम्तहान में कामयाबी के लिए कौन सी दुआ बेहतर है। तो बच्चों के लिए इम्तहान में कामयाबी के लिए नया पेन खरीदें, पुराने पेन को रहने दें, नया पेन खरीदें, और उसके बाद 5 मरतबा सलवात पढ़ें और उसके पेन को खोल लें। पेन को खोलने के बाद उस पर पढ़ें नून वल कलम वल यस्तरूना बिहक़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम, ये पढ़ें। उसके ऊपर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उसी पेन से एक कॉपी पर 7 मरतबा इसी दुआ को लिख लीजिए।
7 मरतबा इस दुआ को लिखने के बाद दोबारा 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और पेन को बंद कर दीजिए, और पेन को बंद करने के बाद में घर पे ना खोलें बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके उसको खोलें और उससे लिखें। वो दुआ जो आपने 7 मरतबा कॉपी के ऊपर लिखी है उसको घर पर रहने दें, जब उसके सारे एग्जाम्स हो जाएं, क्योंकि आप रोज लिखेंगी वो दुआ, तो जब सारे एग्जाम्स सारे पर्चे उसके खत्म हो जाए तो उन 7 पर्चों के ऊपर कोई मिठाई रखे, कोई स्वीट रखे, कोई या फिर शुगर खाली रखे और उसका पैकेट बनाए। पैकेट बनाने के बाद में उसको दरिया में बहा दें या किसी वेल में कुएं में उसको डाल दें। सलवात हाज़िन मजलिस, सबसे बड़ा इख्तियार इक़्तिदार ये है कि इंसान को दर अहले बैत की गुलामी मिल जाए। सबसे बड़ी हुकूमत ये है कि वो जो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं उनके दर की गुलामी मिल जाए। और मुझे नहीं लगता कि इन मजलिसों से बेहतर गुलामी कोई हो सकती है, इससे बेहतर कोई खिदमत हो सकती है दर अहले बैत की। बस फर्क इतना है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस गुलामी में बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई। हम लोग वो हैं कि जो तकलीफ नहीं उठा रहे, हम लोग वो हैं कि जो आराम के साथ आ रहे हैं। खैर बहरहाल ये तो अपनी अपनी बात है, अपने अपने हालात की बात है कि जिस तरह से भी बीबी जिसको भी बुलाए, लेकिन हमारी एक ड्यूटी ये बनती है कि जब आराम है, सुकून है, तो फिर कम से कम जिस तरह के ये मजमा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आप लोगों को देखे, और जितनी तवज्जो के साथ आप लोग सुनते हैं उसके लिए आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैंने जो पहले दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी इतने ध्यान से रिक्वेस्ट को सुनेगा, इतना कंसंट्रेशन बना रहेगा। हम उस कंसंट्रेशन के लिए आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। आज़ीन मजलिस, मैं आपको बताऊं कि ये जो मजलिसें हैं जिन्हें हम आराम और सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर पा रहे हैं, ये जो अज़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह आराम और सुकून के साथ कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग थे कि जो ऐसे सुकून के साथ नहीं कर पाए, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इंतहा तो ये कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास फर्श अज़ा बिछाने के लिए कोई जरिया भी नहीं होता था, कोई पैसा भी नहीं होता था। होता क्या था कि पूरा साल गुजर जाता था और वो लोग परेशान रहते थे कि फर्श अज़ा बिछेगी तो तबर्रुक कैसे तकसीम होगा, किस तरह से मजलिसों का इंतजाम होगा, किस तरह से इमामबाड़ा सजेगा। और एक वाकया है कि एक गांव में सिर्फ एक सादात का घर है, एक शियों का, एक चाहने वालों का घर है, और उसमें 4 लोग हैं, एक मियाँ बीवी और 2 उनकी बेटियां हैं। अब मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है और माँ बाप दोनों परेशान हैं कि किस तरह से हम इंतजाम करेंगे, सफेदा किस तरह से बिछेगी, तबर्रुक किस तरह से तकसीम होगा। दोनों परेशान हैं। यहाँ तक के एक मर्तबा दोनों बेटियां छोटी छोटी हाथ जोड़ के आई, कहा आप परेशान न होइए, हम सुनते रहते हैं, रात दिन आप परेशान रहते हैं, रात दिन आप फिक्र में मुब्तला हैं, आप परेशान न होइए, आप ऐसा कीजिए हम में से किसी एक को बाजार में ले जाके सेल कर दीजिए, जो कीमत मिल जाए उससे आप फर्श अज़ाए हुसैन बिछाइए, उससे आप तबरुक का इंतजाम कीजिए। बस अहले अज़ा जो कूड़ा डाला गया, अब जाहिर बात है माँ बाप के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन सी औलाद को वो सेल कर दे और कौन सी औलाद को अपने गले जैसे लगा के रखे। लिहाजा कूड़ा डाला गया, पर्चा डाला गया और पर्ची में बड़ी बेटी का नाम निकल आया। बड़ी बेटी का नाम सकीना है। अब जब जाने की तैयारी हुई तो माँ ज़ारो कतार रोने लगी। तो जब रोने लगी तो हाथों को जोड़कर कहा, अम्मा मुझे ना रोइए, अम्मा जब भी कभी आपको रोना आए तो हुसैन की बेटी सकीना को रोया कीजिए। और उसके बाद रिवायत कहती है कि बाप लेके बाजार में आया, और बाप लेके अब जो बाजार में आया तो आलम ये था कि सर उसका झुका हुआ था, पेशानी से पसीना बह रहा था, गैरत के मारे उसका जिस्म कांप रहा था। आलम ये था कि लोग आते थे, ग्राहक आते थे और सौदा होता था, कोई चला जाता था, कोई खामोश खड़ा हो जाता था। आलम ये था कि बदन बाप का कांप रहा था। एक मर्तबा बेटी ने जब ये आलम देखा तो कहा, बाबा आप इसलिए कांप रहे हो कि मैं बाजार में खड़ी हूँ। ए बाबा एक मर्तबा सैयद सज्जाद के बारे में सोचो। ए बाबा उस बीमार का क्या आलम हुआ होगा जब वो आया होगा कूफा शाम के बाजारों में और माँ बहनें खुले सर होंगी। क्या बाबा तुम थोड़ी सी देर के लिए मुझे बाजार में लाए हो तो तुम्हारी मेहनत का ये आलम है, तुम्हारी शर्म का ये आलम है। तुम जरा देर सैयद सज्जाद के बारे में सोचो। बस एक ग्राहक आया और सौदा तय हो गया। बच्ची को उसने लिया और ले जाके घर में अपनी बीवी के हवाले किया और कहा कि देखो हमारे
कोई औलाद नहीं है, हम इसे औलाद की तरह पालेंगे। माँ बाप ने ये तय, लाने वाले ने, खरीदने वाले ने ये तय तो कर लिया, मगर बेटी का भी दिल बेचैन है घर के लिए। आज चांद निकल आया और शाजा बीत गई, मेरे घर में हाय हुसैन हो रहा होगा और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और उधर माँ बाप भी बेचैन है, मालूम नहीं बेटी किस आलम में होगी। एक दिन गुजरा, अगले दिन नकुल बाप का दरवाजे पे दस्तक हुई। अब जो बाप ने जाके देखा तो क्या देखा कि वो जो खरीद के लेके गया था वो वापस ले आया। कहा ये लो अपनी अमानत। कहा भाई इसने तुम्हें क्या परेशान कर दिया? ये कह के बेटी से कहा मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद न थी, जब तुमने वादा किया था तो वादे को पूरा क्यों न किया? कहती है बाबा मैंने इन्हें परेशान नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, तुम इन्हीं से मालूम कर दो। तो पूछा कि भाई क्या हुआ, तू वापस करने के लिए किस लिए लेके आया है? कहा कुछ नहीं हुआ, हुआ ये था कि जब मैं रात को सोया तो तुम्हारा रसूल मेरे ख्वाब में आ गया और आने के बाद कहा अरे ये मेरे चाहने वाले की बेटी है, ये हमसे मोहब्बत करने वाले की बेटी है, इसके माँ बाप इसके लिए बड़े बेकरार है, हमारे ऊपर तेरा बड़ा एहसान होगा अगर तू इसे इसके माँ बाप तक पहुँचा दे। कहता है मैं तड़प गया जब उन्होंने मुझे दिरहम और दीनार की थैली निकाल के दी, ले अब तेरी कीमत अदा करते हैं। मेरे हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, मुझे दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, मैं आपकी अमानत आपके चाहने वाले तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, कैसा करीम था मेरा नबी, कैसी रहमत वाला था मेरा नबी। लेकिन खुदा जाने करबला वालों के दिल कैसे हो गए थे कि जिन्हें अरे हुसैन के बच्चों पर रहम न आता था। नबी का कलमा पढ़ने वाले हुसैन के बच्चों पर रहम न खाते थे और ये आलम था कि हुसैन के बच्चों को तीरों से मारा जा रहा है, देगों से मारा जा रहा है, खंजरों से मारा जा रहा है। हाय नेज़ा, आप जानती हैं कि आज मुहर्रम की 7वीं तारीख और ये 7वीं तारीख उम्मे मरवा के लाल से मंसूब है। आज आइए कासिम इब्न हसन का मातम कर ले। वो कासिम जो एक बेवा की अमानत है, जो एक मजलूम की निशानी है, जिसका बाप इतना मजलूम था। कि हमारे घर होता ये है कि जब जनाजा रुखसत होके घर से चला जाता है दोबारा घर में वापस नहीं आता। मजलूमियत हसन ये थी कि जनाजा गया भी और तीरों से जल्दी होके वापस भी आ गया। हजरत उमर अल्लाह खुदाया रहमत नाज़िल कर दे इन बुलंद होने वाली आवाजों पर तुमने मरवा के लाल का मातम कर रही है। खुदाया रहमत नाज़िल कर दे इन आंखों पर जो कासिम के कब्जे बह रही है। तारीख कहती है कि आशूर का दिन आया और उन्हें फरवा जिन्होंने रात भर कासिम को समझाया था देखो किसी भी अपने अजीज की मैयत आने से पहले मेरे बच्चे तुम्हारी मैयत आनी चाहिए। और जब उन्होंने सुना कि मुस्लिम के यतीमों की मैयतें आ गई, जब उन्होंने सुना कि उन्हें मोहब्बत की लाशें आ गई, जब उन्होंने सुना कि अली अकबर मरने के लिए तैयार है, बेटे को बुलाया और बुला के कहा कासिम में देर ना करो, कासिम अब शहादत में देर ना करो, अगर अली अकबर भी मैदान से मर के आ गए मैं किस तरह से फिर फातिमा को अपनी सूरत दिखाऊंगी। कहते अम्मा जो मरना तो चाहते हैं मगर जब भी चचा के पास जाते हैं चचा बेचैन हो जाते हैं और हमसे कहते हैं कासिम धूप बहुत तेज है, खैमे के अंदर चले जाओ, काफे के साथ आओ। ये कह के हाथ को पकड़ा और दरे खैमा पर आई, खैमे के घर पे आके आवाज दी आका एक बेवा का हदिया कबूल फरमा लीजिए। आका एक बेवा को फातिमा के सामने सुरखरू कर दीजिए, मेरे हदिया को कबूल फरमा लीजिए और ऐसे मरने की इजाजत दे दीजिए। तारीख कहती है कि जिस तरह से कासिम को गले से लगा के हुसैन रोए इस तरह से कभी ना रोए, इस तरह से किसी शहीद को गले लगा के हुसैन न रोए। यही वो वक्त था जब कासिम ने अपना ताबीज खोल के चचा को दिया। ये चचा जब वापस दुनिया से जा
ताबीज मेरे बाजू पे बांधा था। हुसैन ने ताबीज पढ़ा, ताबीज क्या था? एक मरते हुए भाई का, एक भाई को खतरा, हुसैन तुम्हारे कुर्बान पर सलाम, हुसैन तुम्हारे कुर्बान पर हसन कुर्बान हो जाए। भैया कल करबला में सख्त वक्त आने वाला है, तुम हमारी तरफ से हमारे बेटे को इस्लाम पर कुर्बान कर देना। बस ऐसा ताबीज को पढ़ा, एक मरतबा फिर से कासिम इब्न हसन को कलेजे से लगा लिया, इतना रोए के बेहोश हो गए। जब मस्जिद आँख खुली तो आप कासिम को मैदान के लिए तैयार करना शुरू किया। कमर में पटका बांधा, सर पे अमामा रसूल रखा, मगर अब जो अमामा रखा इस तरह से दोनों सिरों को लटका दिया जिस तरह मरने वाले के कफन में सिरों को लटका दिया जाता है। और उसके बाद जब घोड़े पे बिठाया, कासिम जाने लगे, कहा मेरे लाल जरा इधर आओ। कासिम करीब आए, हुसैन पढ़े और पढ़ने के बाद कासिम का गरीबान फाड़ दिया। बच्चा दौड़ गया, चाचा ये क्या कर रहे हैं? कहा मेरे लाल इसलिए गरीबान फाड़ा है, यतीमों की निशानी ये होती है, उनका गरीबान फटा हुआ होता है। मेरे लाल इसलिए फाड़ा, शायद ख्वाजा यतीम को यतीम समझ के तुम्हारे ऊपर रहम आ जाए। कासिम चले, जाने के बाद कयामत का जिहाद किया, मगर उधर एक तरफ भूखा प्यासा 13 बरस का बच्चा कासिम और एक तरफ शेरो जालिम। आलम यह हुआ, कासिम को घेर लिया, हर तरफ से तलवारें चलनी शुरू हुई, तीर आने शुरू हुए, ऐसे लगने शुरू हुए। एक मरतबा रन से बच्चे की आवाज आई। देखिए सुबह से जो भी गिरा, किसी ने कहा आका सलाम, किसी ने कहा मौला सलाम, किसी ने कहा आका मदद को आइए, मगर बड़ा छोटा था कासिम, बहुत कमसिन था कासिम। घोड़े से गिरा, चाचा को आवाज नहीं दी, आवाज दी, या अम्मा आवाज दी, अम्मा मेरी खबर लीजिए, अम्मा मेरी खबर लीजिए। हुसैन दौड़े, जवान अपने दौड़े, आलम ये है आज में ऐसा है, अरे किसने मेरे बच्चे को मार डाला, अरे किसने मेरे बच्चे को जख्मी किया, अरे किसने मेरे बच्चे को घोड़े से गिराया। हुसैन ऐसा, इधर से हुसैन दौड़े और उधर वाजिया में एक शोर उठा, हुसैन ऐसा लेकर आ रहे हैं। हुसैन का आलम यह है किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस ये सुनना था, ये कासिम के सरहाने बैठा हुआ था और चाहता था कि कासिम के सर को तन से जुदा कर दे। जैसे ही कानों में ये आवाज आई, वो कातिल दौड़ा, तमाम फौज में भगदड़ मची। अब जो भगदड़ मची, उधर के घोड़े इधर आए, इधर के घोड़े उधर गए, बीच में कासिम की मैया घोड़ों की टांगों से पामाल हो गई, मछलियां छूट गई, सीने की हड्डियां टूट गई। आवाज आ रही थी, चाचा मदद कीजिए, चाचा मदद कीजिए, चाचा मेरी हड्डियां टूट गई। हुसैन कलेजा पकड़ के बैठ गए, हे मेरे लाल, हुसैन बड़ा शर्मिंदा है, मैं उस वक्त आया जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत न रही। हुसैन ऐसा, अब हुसैन आवाज दे रहे, कासिम कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आती, मेरा लाल कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आती। जब कोई आवाज न आई, हुसैन एक टीले पे चढ़ गए, चढ़ के आवाज दी, कासिम इमाम वक्त आवाज दे रहा है, तुम जवाब नहीं देते। बस ये सुनना था, ऐसा कहीं से हाथ उड़ गया, कहीं से पैर उड़ गया, कहीं से सर उड़ गया, कहीं से जिस्म के कटे हुए हिस्से उड़ गए। लब्बैक या चाचा, लब्बैक या चाचा, ए चाचा, कासिम की क्या मजाल, तू पुकारे और कासिम
मातम थे उठने वाले हाथों पर अपनी रहमत नाज़िल कर। बारेला हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ फरमा दे। बारेला हमें तो हमारी तौफीकात में इजाफा कर दे। बारेला हमें तौफीकात नेक अता कर दे। बारेला जिनकी रोजी लंघन की रोजी अता फरमा दे। बारेला हमारे नौजवानों को अपनी हिफाजत में रखना। बारेला जो इस फर्श अज़ाब पर खुलूस से दिल के साथ आते हैं, मातम करने के लिए उनकी तमाम दुनियावी आखिरी हाजतों को पूरा कर दे। बारेला जो बीमारी में गिरफ्तार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। बारेला हमारे दिलों से हमारी बीमारियों को दूर फरमा दे। बारेला हमें कुफ्र को सर्वगुण कर दे। अलम इस्लाम को सर्वगुण कर दे। फातिमा के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे।